Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Saima Arif here, and today we are going to start our sixth chapter of class 7th polity. So, our sixth chapter is Understanding Media. What is your favorite TV program? What do you like to listen to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you suffer the internet, and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication? This word is media. In this chapter, you will read more about the media. You will find out what is required to make it work, as well as the ways in which the media affects our daily lives. Can you think of one thing that you have learned from the media this week? Okay, so here is our understanding media in sixth chapter that we are going to. So, in this chapter, you will learn more about understanding media. You will understand what is media, what is media's importance in our daily lives, and all that things. So, here we go. Everything ragging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Media is the plural form of the word medium. So, what is media? Media is the plural form of the medium, and it describes the various ways through which we can communicate in society. And it is described from the various things from which we are communicated in society and other things. Because media refers to all means of communication, everything ragging from a phone call to the evening news on TV can be called media. Whatever we are communicating, whatever we are ragging from a phone call, and whatever we are talking about, so we are talking on the phone, we are watching news on TV, and all those things so can be called as a media. TV, radio, and newspaper are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. And whatever you are reading, whatever you are watching on TV, you are reading newspaper, are a form of media. It is a form of what? It is a form of media. And what is media? Media is that reaches millions of people और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड दस दे आर कॉल्ड ए मास मीडिया. तो यही सारी जो चीज़ें हैं मीन्स कि जैसे मीडिया है, जो मीडिया होता है दैट रीचेस फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो हम घर बैठे बैठे हर किसी की मतलब हर किसी देश की खबर सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इवन देख सकते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड द मास मीडिया. Media and technology. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media. Now it is very means ki it would very probably be difficult for you to. How can we imagine our life without a media? But cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. अब जैसे कि केबल टेलीविज़न है या वाइड स्प्रेड ऑफ हम इंटरनेट की बात करें, ये एक रीसेंट फिनोमेना मीन्स कि रीसेंट टेक्नोलॉजी है. These have been around for less than 20 years. इनको आए हुए मतलब 20 साल से कम ही हुए हैं. That technology that mass media uses keeps changing. और जो ये टेक्नोलॉजी है, ये मास मीडिया है, it's changeable. It's not constant. Newspaper, television, and radio can reach millions of people because they use certain technology. We also tend to discuss newspaper and magazine as the print media and TV and radio as the electronic media. So what newspaper, television या radio की हम बात करिए means कि ये reach करते हैं और millions of people, ठीक है, because they use certain technology. कैसे ये पहुँच जाती है और millions of people because they means कि they have to use certain technologies in that. Okay, we also tend to discuss newspaper. हम means कि discuss करते हैं newspaper, magazines as the print media. उसको हम क्या बोलते हैं? वो हो गई एक print media. And TV and radio as the electronic media. और TV और radio जो है वो क्या है? एक electronic media. What do you think
वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? हम क्यों ये सोचते कि जो न्यूज़पेपर है वो क्या है? प्रिंट मीडिया. एज यू रीड फर्दर you will find that this naming is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology that mass media uses has changed over the years and continues to change. Okay, changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. देखो change in technology, changing or in machines या making technology more modern, ये हेल्प करता है टू रीच मोर एंड मोर पीपल में. ठीक है. It also improves the quality of sound and the images that you see, but technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think of our lives without television. If we take an example that today we are living in a modern generation, so what technology is more and more important in today's generation? Okay, in today's era, we can say television has enabled us to think of ourselves as member of a larger global world. जो टेलीविजन है मीन्स की हैज़ enabled us to think मीन्स कि ये हमें सोचने पे ये मजबूर करते हैं कि हम जो लोग हैं वही द मेंबर, हम किसके एक ग्लोबल लार्जर ग्लोबल के वर्ल्ड के क्या है मेंबर है. Television images travel huge distance through satellites and cables. This allows us to view news and entertainment channels from the other parts of the world. As we can see that our YouTube channels, isn't it? We go on YouTube, तो हम क्या देखते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कुछ भी हम देखते हैं. Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States. If we talk about the cartoons, तो mostly जो भी cartoons हैं they come from Japan and United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. Television has brought the world closer to us. So what? Television, media, these all the things, they have brought the world means कि दुनिया को इन्होंने बहुत नज़दीक लाया है हमारे. Media and money. The different technology that mass media use are expensive. जो different technology जो mass media use करते हैं that are very expensive. Just think about the TV studio in which the news reader sits. अब now you can think on simple that just ये TV studio जो है जहाँ पर news reader क्या है बैठते हैं, it has lights, camera, sound recorders, transmission satellites, extra. So what he have in that studio? Lights है, camera है, sound है, recorders है, transmission satellites है and much more things, all of which cost a lot of money. ये जितनी भी चीज़ें हैं like light है, camera है, whatever, तो it cost a lot of money. In our news studios, it is not only the news reader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. It is अगर हम न्यूज़ सिंपली एक न्यूज़ स्टूडियो की बात करें, सिर्फ यहाँ पे ये न्यूज़ रीडर नहीं है जो जिसको मीन्स कि सिर्फ हमें उसी मेंबर को पे करना नहीं, इसके बरक्स भी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं जो इनको ब्रॉडकास्ट करने में हेल्प करते हैं. दिस इंक्लूड्स दोज हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स. तो वहाँ पर कैमरा मैन्स होते हैं, लाइट मैन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मीन्स कि ये सारी चीज़ें एक साथ लाने में, और मीन्स कि वहाँ पे न्यूज़ स्टूडियो में जो ये बाकी सारे मेंबर्स होते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं. आल्सो एज यू read earlier, the technology that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest टेक्नोलॉजी. अभी हमने जो अब वो पढ़ा कि जो ये मास मीडिया है ये इट इज़ कीप चेंजिंग मीन्स कि चेंज होते रहते हैं. ठीक है, और बहुत सारे पैसे जो होते हैं उस पर खर्च होते हैं क्या करने के लिए? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए. ड्यू टू दीज कॉस्ट द मास मीडिया नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू डू इट्स वर्क. तो इसके मीन्स कि इससे क्या होता है, ये जो
कॉस्ट होते हैं, जो कॉस्ट्स होते हैं किसके, मास मीडिया के, नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ मनी, इनको क्या करनी होती है, ये ग्रेट डील करते हैं पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि इनको जो अपना जो वर्क है वो मोर बेनिफिशियल बनाना होता है। एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। जो ये इसका जो रिजल्ट क्या निकलता है, इसका जो कंक्लूजन ये है कि मोस्ट ऑफ टेलीविजन जो चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर जो ये बहुत बड़े बिजनेस के पार्ट होते हैं। मास मीडिया इज़ कंस्टेंटली थिंकिंग ऑफ वेज टू मेक मनी। जो मास मीडिया है वो कंस्टेंटली मतलब लगातार क्या सोचते हैं कि मीन्स कि कहीं से भी कोई भी तरीका मिले क्या करने के लिए, पैसे, टू मेक मनी। One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes. अच्छा, जो मास मीडिया है ना, जो इट इज़ मीन्स की कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि हमें पैसे कैसे बनाने हैं, राइट। तो एक तरीका क्या है मास मीडिया का टू अर्न द मनी, इट इज़ बाय एडवर्टाइजिंग थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि कार है, फ़ोन है, चॉकलेट है, क्लोथ्स है। एडवर्टाइज एड सिस्टम आप आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक। यू मस्ट हैव नोट्स द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट दैट यू हैव टू सी while watching your favorite television show। जब भी आप कोई अपना फेवरेट शो देख रहे हैं, फेवरेट टेलीविज़न शो देख रहे हैं, तो उससे पहले क्या लगता है, ऐड लगता है। तो ये जो मास मीडिया है इस कंस्टेंटली थिंकिंग, ये सोचता रहता है कि हाउ टू अर्न अ मनी, ठीक। वाइल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी द सेम एडवर्टीजमेंट आर शोन रिपीटेडली बिटवीन ईच ओवर एंड सो यू आर ऑफन वॉचिंग द सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। So if we take an example the cricket match, if you are watching cricket match on TV, तो सेम एडवर्टीजमेंट्स क्या दिखाए जाते हैं रिपीटली इन बिटवीन ईच ओवर, हर किसी ओवर के बाद। एज यू ऑल नो कि हर किसी ओवर के बाद क्या होता है कि हमें क्या दिखाया जाता है, सेम एडवर्टीजमेंट हमें दिखाए जाते हैं। एज यू विल रेड इन द फॉलोइंग चैप्टर, एडवर्टीजमेंट आर रिपीटेड इन द होप दैट यू विल गो आउट एंड बाय व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट हमें क्यों दिखाई जाती है, एड्स हमें क्यों दिखाए जाते हैं रिपीटेडली, कि मतलब ये इसी उम्मीद में हमें दिखाए जाते हैं कि वन डे वट वी गो आउट एंड बाय द एडवर्टाइज्ड थिंग्स जो कि वहाँ पे एडवर्टाइज की गई हो। Media and democracy. In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. तो मीडिया और डेमोक्रेसी, जैसे कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने समझा कि मास मीडिया का क्या क्या रोल होता है, लेकिन डेमोक्रेसी में, हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। तो अगर हम डेमोक्रेसी की अपनी बात करें, जो मीडिया है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है क्या, इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ और डिस्कसिंग इवेंट्स जो भी हमारे कंट्री में या ओवर द वर्ल्ड हो रहे होते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, ठीक। तो अब अगर इसकी हम बेसिक चीज़ देखें, ये इसकी जो इंफॉर्मेशन है, मीन्स की जो ये मीडिया है वो हमें इन्फॉर्म करता है, हम सिटीजन्स को इन्फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल कि क्या इन्फॉर्म करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज स्टोरीज, ठीक। Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned ministers, organizing a public protest, starting a signature campaign, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एक्स्ट्रा। तो जो मीडिया है इन हमारे डेमोक्रेसी में, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ओके, कैसे ये हमारे इसमें डेमोक्रेसी में वाइटल रोल प्ले करता है, क्यों, ये हमें दिखाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करते हैं। अगर वो चाहे दे कैन टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूज़ स्टोरीज, ठीक। और क्या होता है इसमें और भी कुछ वेज हैं जो मीन्स कि हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर है हम उनको लेटर्स लिख के भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, या ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं हम पब्लिक प्रोटेस्ट को, या हम सिग्नेचर कैंपेन खोल सकते हैं, कुछ भी क्या करने के लिए कि गवर्नमेंट को रिथिंक करने के लिए इसके जो प्रोग्राम्स है, इसके मीन्स कि इसके प्रोग्राम की क्या गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो मीडिया जो है हमारे डेमोक्रेसी में बहुत अहम रोल अदा करता है।
गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो मीडिया का जो रोल है वो क्या करता है, इट्स प्लेज ये मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। तो मीडिया क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंसड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंसड मीडिया। अब हम बैलेंसड मीडिया समझेंगे। अभी तक हमने मीडिया समझा कि मीडिया क्या होता है। Report by a reading two versions of the same page news event can on the next page. देखो, न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट, क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्री, प्रोटेस्ट ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्ट ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो है ये देकर है, देखो, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे। पीपल गेटिंग टू वर्क could not do so on time because of a huge traffic jam. The owners and workers are protesting the government's decisions to close down polluting factory units। तो यहाँ पर ये क्या देकर है, ये एक न्यूज़पेपर में ये देकर है, ये इवेंट एक देकर है, ये एक आर्टिकल दिया है यहाँ पे इन लोगों ने। although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the society in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. अब दूसरा क्या है यहाँ पर इंडिया डेली रिपोर्ट में, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज causes unrest. The closure of 1 lakh factories in the city's residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers to the streets to strongly protest this closure. They said that their livelihoods would be lost. They said the fault lies with the municipal corporation because it continued to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also say that there were no advocate relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city ban to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said the government says that it has done a lot of relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years. अब इसका फैक्ट क्या है, द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रेड ईदर न्यूज़पेपर यू वर्ड ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। अगर आपने ये दोनों जो न्यूज़पेपर से ये पढ़े हैं तो लेकिन आपको क्या पता चला, सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी। इफ़ यू हैड रेड द न्यूज़ ऑफ इंडिया you would mostly likely think of the protester as a nuisance. They're disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. तो अब इनका जो डिसरप्टिंग करना क्या मीन्स कि ट्रैफिक को डिसरप्ट करना या कंटिन्यूली पोल्यूटिंग करना सिटी में विद देयर फैक्टर्स, उनकी फैक्ट्रीज से जो वहाँ से वो जो धुआं निकलता है या कुछ भी जो चीज़ निकलती है, ये बैड इंप्रेशन पड़ता है उनके बरक्स, ठीक। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, इफ़ यू हैड रेड द स्टोरी इन द इंडिया डेली you would know that the protest are because of lot of livelihoods will be lost if the factories। देखो, एक न्यूज़पेपर पे दिखाया है कि फैक्ट्रीज़ की वजह से, जो फैक्ट्री से जो ये निकलता है उसकी वजह से क्या होता है, जो भी पोल्यूटिंग उसकी वजह से जो हमारी सिटी पोल्यूट हो रही है और उसके वजह से बैड इंप्रेशन पड़ रहा है, ठीक। दूसरी साइड में अगर इंडिया डेली जो आपने अभी ये न्यूज़ पढ़ी इस पे, तो उससे दिखाए जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो अपने वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से हम अपना लाइवलीहुड खो देंगे, ठीक है, और हम अपनी फैक्ट्रीज खो देंगे अगर फैक्ट्रीज को रिलोकेशन किया, ठीक है। हैव नॉट बीन एडवोकेट नीदर ऑफ दी स्टोरी इज़ अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड रिपोर्ट।
A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their mind. Balanced report वो रिपोर्ट होती है कि वो कवर अप करती है, वो डिस्कस करती है ऑल पॉइंट्स, व्यूवर्स के ऑल पॉइंट्स को ये क्या करती है, डिस्कस करती है ऑफ ए पर्टिकुलर स्टोरी के। और ये फिर जो पढ़ने वाला है ये उसको जो मीन्स कि जैसे अभी हमने ये न्यूज़पेपर पढ़े तो ये उन तक छोड़ देते हैं कि जो न्यूज़ रीडर है उनके माइंड तक छोड़ देते हैं कि ये जो रीडर है ये इसके बारे में किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से डिसीजन लेंगे। राइटिंग ए बैलेंस्ड रिपोर्ट however depends on the media being independent. An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. देखो अब बैलेंस्ड रिपोर्ट हमने अभी देखा, जो बैलेंस्ड रिपोर्ट होगी वो ऐसी रिपोर्ट होती है जो ये हर किसी मीन्स कि हर कोई स्टोरी के हर किसी व्यू को डिस्कस करेगी, लेकिन जो रीडर होता है, जो न्यूज़ रीडर होता है, जो न्यूज़ पढ़ता है, ये उसके माइंड तक छोड़ देगी कि ये इस न्यूज़ को कैसे अंडरस्टैंड करे। ठीक, अब जो ये इंडिपेंडेंट मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि जो इसको कोई दूसरा आके कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इस इंडिपेंडेंट मीडिया को नहीं बता सकता है व्हाट यू शुड हैव टू इंक्लूड, व्हाट शुड हैव यू एक्सक्लूड एंड अपनी स्टोरी में। ठीक, एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। और इंडिपेंडेंट मीडिया जो है यही इम्पॉर्टेंट होती है हमारी डेमोक्रेसी में। एज यू रेड अबो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन्स। ठीक, अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये मीडिया है ये क्या, इसका जो बेसिस है ये क्या है कि ये प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन और हमें मीन्स की एंड दैट वी टेक एक्शन एज सिटीजन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल नॉट बायस्ड। तो ये क्या होना चाहिए, मीन्स की इंडिपेंडेंट जो मीडिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी डेमोक्रेसी का। और जो मीडिया है थ्रू विच वी ऑल सिटीजन गेट टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन आवर लाइव्स, तो ये क्या होना चाहिए, ये रिलायबल होना चाहिए। जो मीडिया होता है वो रिलायबल होना चाहिए, बिकॉज हम इससे क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। और जब हमें मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसी के मीन्स कि उस इंफॉर्मेशन की वजह से हम कुछ सोच पाते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है, या हम ये देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अब अगर जो हमारी जो मीडिया है यही हमें रिलायबल रिसोर्स नहीं प्रोवाइड करेगी, देन वी थिंक रॉन्ग अबाउट द गवर्नमेंट, वी थिंक रॉन्ग वट एवर गोइंग इन आवर लाइव्स और ऑल दैट। सो ठीक, तो ये जो मीडिया होती है, मीडिया क्या होनी चाहिए, एज वी नो कि जो मीडिया है ये होनी चाहिए रिलायबल नॉट बायस्ड। हाउएवर द रियलिटी इज़ दैट मीडिया इज़ फॉर फ्रॉम इंडिपेंडेंट। अब अगर रियलिटी की बात हम करें, जो मीडिया है इट इज़ फार अवे फ्रॉम द इंडिपेंडेंट। दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। अब दो रीजन्स है इसके भी। द फर्स्ट इन द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। फर्स्ट कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। जो गवर्नमेंट चाहे वही मीडिया दिखाती है, एंड दैट इज़ नॉट गुड। When the government prevents either a news item or scenes from a movie on the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship। तो इसको क्या रेफर किया जाता है, एज censorship। There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975-1977। जो 1975 में तो 77 में जो एमरजेंसी हुई थी, तो उस टाइम भी क्या वो जो इंडियन हिस्ट्री में जो ये व्हेन द गवर्नमेंट जो है इन्होंने सेंसर किया था किसको, मीडिया को। While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspaper nowadays still fail to provide a balanced story. अब अगर हम मीडिया की ही बात नहीं करते, अब हम दूसरे जो सोर्स मीन्स की जो हमारे न्यूज़पेपर है, अगर हम न्यूज़पेपर की आज की बात करें नाउअडेज, तो जो न्यूज़पेपर भी है उनके पास वो भी हमें दे आर नॉट एबल टू
provide us a balanced story. The reason for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. तो जो लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की इस मीडिया पे, तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये बिजनेस हाउसेस है वो कंट्रोल करते हैं किसको, मीडिया को. एट टाइम्स इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ दीज बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. तो ये जो एट टाइम्स क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा, ये एक इंटरेस्ट होता है कि इनका बिजनेस हाउसेस का, कि ये एक फोकस करते हैं सिर्फ एक ही साइड की स्टोरी पे. मीडियाज कंटिन्यूअल नीड फॉर मनी एंड इट्स लिंक्स टू एडवर्टाइजिंग मीन्स दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मीडिया to be reporting against the people who give them advertisement. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. तो अब जो ये मीडिया है ये अब हमें क्या मीन्स कि जो ये मीडिया है हम इस पर भी पूरा ये जो मीडिया है ये हम उस पर पूरा भरोसा भी नहीं करते हैं, पूरा भरोसा भी नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि अब ये क्या अपने इंटरेस्ट के लिए ये, और जो ये इंडिपेंडेंट मीडिया है ये लिंक है क्लोज टू द बिजनेस हाउसेस. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. तो अब जो ये मीडिया है ये किस पे फोकस करती है, पर्टिकुलरली आस्पेक्ट ऑफ ए स्टोरी पे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि ये इस मीन्स की जो ये स्टोरी है ये क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. ऑल्सो इफ़ दे वांट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन वन साइड ऑफ ए स्टोरी. अब अगर वो चाहे कि हमें पब्लिक का सपोर्ट इंक्रीज़ करना है इसमें किसी इशू पे, तो वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं सिर्फ एक ही स्टोरी के पहलू पे. सेटिंग एजेंडाज. द मीडिया आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी. ठीक है, अब जो ये मीडिया है ये कुछ एजेंडा सेट करते हैं. जो मीडिया है ये ये मीन्स की प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसाइडिंग क्या डिसाइड करने में कि कौन सी जो स्टोरीज हैं उन पे फोकस करना चाहिए और किन स्टोरीज पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल the annual function at your school is unlikely to make the news. ठीक, but if a famous actor is invited as a chief guest then the media might be interested in covering it. ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम लेंगे जो कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है, ये अनलाइकली टू मेक द न्यूज़ मीन्स कि ये अनलाइकली मेक करता है किसको, न्यूज़. अब अगर उस बट इफ़ अ फेमस एक्टर, अगर फेमस एक्टर को बुलाया जाए कहाँ पे, इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, जो फिर वो जो मीडिया है वो कवर अप करता है ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द एक्टर. बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इश्यूज द मीडिया इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस एंड ब्रिंग्स दोज इश्यूज टू आवर अटेंशन. ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स and in shaping our thoughts, it is commonly said that the media sets the agenda. तो अब ये मीन्स कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है, इट प्लेज इन आवर लाइव्स की जो ये हमारा जो ये मीडिया है ये शेप करता है हमारे थॉट्स को, मीन्स कि ये शेप करता है, मीन्स कि हमारी थॉट्स को शेप करता है. इट इज़ कॉमनली सेट दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कि जो मीडिया है ये सेट करता है एजेंडा, मीन्स कि एजेंडा बनाता है. वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रिव आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स. दे published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need to regularly monitor these colas according to international quality and safety standard. देखो वेरी रिसेंटली अगर हम देखेंगे जो मीडिया है उसने कवर अप किया था कि उसने हमारा जो इंटेंशन है, अटेंशन है, वो ड्रिव किया था किस पे कि जो कोला ड्रिंक है उस पे क्या है, लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स पे. ठीक है, जो ये पब्लिश की गई थी रिपोर्ट्स, इसमें इन्होंने इंडिकेट किया था हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो अब अगर हम देखें जो मीडिया है कभी कभी वो हमारे जो मीन्स की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं उसको वो अच्छे से कवर अप करते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि जो मीडिया है इट इज़ नॉट कवरिंग ऑल द थिंग्स, जिसकी वजह से हम भी क्या रहते हैं, धोखे में.
दिस डिस्पाइट द गवर्नमेंट रेजिस्टेंस बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोलाज वेयर अनसेफ। तो इससे क्या हुआ कि जब मीडिया ने दिखाया कि कोलाज में क्या है हाई लेवल रेट ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो ये गवर्नमेंट ने रेजिस्ट किया कि जो ये कोलाज है वो अनसेफ है, किसके लिए, हम ह्यूमन हेल्थ के लिए। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting। तो क्या होता है, जो कवरिंग दिस जो मीडिया है समटाइम जब ये ऐसी स्टोरीज़ को कवर करता है, तो जो मीडिया है वो इट प्लेज अ वेरी पॉजिटिवली रोल इन आवर लाइव्स की जो ये फिर छोटी छोटी चीज़ों पे जो ये है जब ये इवेंट पे ये करता है मेजर रोल प्ले, तो इससे क्या होती है हमारी जो ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट होने से बच जाती है। देयर आर सेवरल इंस्टेंस व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो मीडिया है इट प्लेज मीन्स कि इसके प्रॉस भी है, इसके कॉन्स भी है, ठीक है। अब अगर इसके फ़ायदे भी है तो इसके नुकसानात भी है, क्योंकि कभी जब ये गलत न्यूज़ देता है तो वो कभी कभी सही होती है, कभी ये हमें गलत न्यूज़ भी दे देते हैं, ठीक है। तो जो मीडिया है इट इज़ मिक्स अप। For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. However, we seldom find the media discussing this issue. A well-known Indian journalist wrote of how the Fashion Week, in which clothes designers show their new creations to rich people, formed the front page headlines of all the newspaper, while several slums were being demolished in Mumbai. The वेरी सेम वीक एट दिस वाज नॉट इवन नोट्स। देखो क्या होता है, जो मीडिया है हम ये कैसे फेल होती है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो भी मीन्स कि हमारी जो अटेंशन वहाँ पे नहीं ले जाती। देखो एट द वेरी सेम ईयर में क्या हुआ था कि एवरी ईयर जो होते हैं 1000 लोग जो है वो सफ़र करते हैं, वो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स कि जो पोल्यूटेड ड्रिंकिंग वो वाटर पीते। तो फिर उसी टाइम ही क्या होती, जो फैशन वीक है वो फैशन वीक क्या जो मीडिया है वो जो जर्नलिस्ट है वो कवर अप कर रहा था फैशन वीक इन विच जो डिज़ाइनर्स ने शो किए थे कुछ क्रिएशंस टू रिच पीपल। और उसी वक्त मुंबई में क्या हो रहा था कि जो स्लम्स एरियाज़ में जो झोपड़पट्टी में जो भी ये इंसान रहते हैं तो वो वहाँ पे मर रहे थे, लेकिन वो डिमोलिश करके मुंबई की जो हालत है वो डिमोलिश करके उन्होंने क्या प्रेफर किया दिखाना, उसी सेम वीक में उन्होंने प्रेफर किया फैशन को दिखाना। तो और जो वहाँ पे जो मर रहे थे उनको इवन दे दिस वाज नॉट इवन noted. As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related, ठीक है, to the working of the government. The media decides what to focus on and in this way it sets the agenda। देखो होता क्या है जो ये मीडिया है, देखो अब अगर हमने ऊपर पढ़ा कि जो फैशन वीक है जो मीडिया है उसने कवर अप किया फैशन वीक को और मुंबई की हालात को डिमोलिश किया। तो इसी तरीके से जो मीडिया है ये सेट करता है अपना एजेंडा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी एंड दिस इज़ कॉल्ड अ सेंसरशिप। कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स करती है ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है मीडिया को फ्रॉम पब्लिशिंग अ स्टोरी, और उसी को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप। नाउअडेज मीडिया क्लोज रिलेशनशिप विद द बिजनेस। अब जो आजकल का जो मीडिया है उसको क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ है, बिजनेस हाउसेस के साथ। ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज़ डिफिकल्ट टू कम बाय। अब क्या होता है कि अब जो बैलेंस्ड रिपोर्ट है वो बहुत मुश्किल ही से ही आती है, ठीक है। गिवन दिस it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। अब अगर जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं थ्रू मीडिया या कुछ भी हम देखते हैं थ्रू न्यूज़ एंड वट एवर, तो हमें जो हमारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हमें इससे अवेयर रहना चाहिए कि ये जो
न्यूज़ है कैन बी नॉट कंप्लीट, ऑफन नॉट, कभी ये कंप्लीट नहीं होती है, और ये क्या होती है, वन साइडेड स्टोरी होती है। वी देयर फोर नीड टू एनालाइज, हमें जो हम वी द रीडर वी द इसलिए जब हम देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि जो ये न्यूज़ है, जो ये पूछ रहे हैं या जो हमें दिखा रहे हैं, तो ये क्या होती है, ये कभी कभी वन साइडेड भी हो सकती है, या ऑफन अगर हम आज की बात करेंगे इट इज़ वन साइडेड। तो हम जो रीडर्स हैं हमें क्या करना चाहिए, तो हम जब भी न्यूज़ पढ़े या देखे कहीं पे, तो हमें ये एनालाइज खुद करना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन नेक्स्ट, कि इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। ठीक है, कभी भी वन साइडेड न्यूज़ पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। हमें क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, लाइक कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो मैंने सीखा, या जो ये इंफॉर्मेशन है जो ये प्रोवाइड की गई है, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है, जो हाइड है, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू इन द आर्टिकल बीइंग रिटन, और ये आर्टिकल जो है ये किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा गया, या किसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिखा गया, हुज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट आउट एंड वाई, और किसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लेफ्ट किया गया, छुपाया गया, वो नहीं लिखा गया और क्यों नहीं लिखा गया। जब भी हम आज के दौर में जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़े या न्यूज़ हम देखें, तो हम क्या देखते थे, हम सिर्फ स्टोरी का एक पहलू देखते हैं, जो दूसरा पहलू है वो हमें खुद रिकॉग्नाइज करना है, वो हमें खुद एनालाइज करना है। So here your chapter is complete, your sixth chapter. Hope you understand well. Thanks for watching.